Okay, so till now we have done atomic models, है ना, उनमें थॉमसन और रदरफोर्ड की मॉडल की बात की थी. Then we have seen what is the drawback of Rutherford model, right? We have also seen some important terms, atomic terms related like isotopes, isobars, isosters, right? Isotones. Okay. Now we are going to move towards is like wave characteristic, okay, and dual nature of light. तो हुआ ये, एक मिनट, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है. सो atomic structure lecture 3. Today's date is 20th May. Okay. So we are going to talk about, let's say, in today's class, some wave characteristic, or let's say important terms in wave. Important terms. So important term, whenever we are going to define any, let's say, wave, what are the important terms? First is, let's say, amplitude. So amplitude is nothing but you are going to say maximum displacement from mean position, or you can say, you know, maximum height of wave pulse. That is represented as A, capital A. इसको किससे represent करते हैं? Capital A से. So let's say अगर ये कोई ऐसे wave जा रही है, so the maximum, let's say, displacement from the mean position or is the height of, you know, wave pulse. ठीक है, that is going to be amplitude. तो इसको क्या बोलते हैं? हाईएस्ट पॉइंट को crest. और इसको क्या बोलते हैं? ट्रफ. तो ये सबको पता है ना, एम्पलीट्यूड क्या है तो होता है. जिनको नहीं पता है उनको याद रखना है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ से ले रहे हैं, मीन पोजीशन से. ठीक है. सेकंड पॉइंट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, दैट इज वेवलेंथ. नहीं, वेवलेंथ से पहले लेट्स से स्पीड और यू कैन से वेलोसिटी. So what is velocity of light? हाँ भाई, कौन बताएगा? जल्दी बताओ. 3 lakh kilometer per second in space. ठीक है. So velocity of light is nothing but 3 into 10 to the power 8 meter per second in space. You know, this is going to be. So we are going to talk about electromagnetic radiation. So yes, we have to consider this velocity of light. Third, है ना, it is represented as, है ना, velocity को कैसे represent करते हैं? C से, capital C. Third, let's say we are going to say wavelength. Wavelength क्या होता है?
length of one cycle, or you can say distance between two consecutive crests और trough. वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? लैम्डा. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा. ठीक है. तो अगर मान लो ये वेव है कोई, like this. So what we are going to do is we will take crest, two consecutive crest, और इनके बीच में जो भी लेंथ आएगी that we are going to say lambda, or either between let's say two troughs, इनके बीच की जो भी लेंथ होगी that is going to called as lambda. या फिर we are going to say कि between length of a one complete wave, so what is going to be, that is also going to be lambda. सब सेम ही है. ठीक है ना? So ये lambda wavelength. What is the unit of wavelength? That is unit of, let's say, length, है ना? So that is going to be either is going to be in meter, second it is going to be let's say in centimeter, or you can say third nanometer. जो ज़्यादा famous one है जो हम देखेंगे that is nanometer and fourth angstrom. Nanometer क्या होता है? 10 to the minus 9 meter. और angstrom क्या होता है? 10 to the minus 10 meter. This is nothing but nanometer, है ना? And this is angstrom. ठीक है? This is nothing but angstrom. ठीक है? That is 10 to the minus 10 meter. So what is the relation between these two? The relation is 1 nanometer is nothing but 10 angstrom. समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को भी? से यस नो, समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है, तो ओके. केमिस्ट्री इजी लग रही है ना? बस ये बताओ. ये लोग कह रहे थे ना केमिस्ट्री डिफिकल्ट है. अच्छा, कोई चीज डिफिकल्ट और इजी कैसे हो जाती है? तो डिफिकल्ट और इजी हो जाती है जब हम किसी क्लास को या किसी पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमें वो आसान लगने लग जाती है ना? यू कैन रिकॉल फ्रॉम योर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस कि कोई भी, जैसे मान लो कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें कुछ चैप्टर आपको इजी लगते होंगे और कुछ टफ लगते होंगे. इजी वो लगते होंगे जो आपने ध्यान से सुन लिए होंगे, उन क्लास में डिस्टर्ब नहीं हुए होंगे, एंड देन फिर आपने एक्सरसाइज कर ली होगी तो वो इजी लगने लग गए, है ना? राइट. टफ वो होंगे जिसमें आप थोड़ा सा नहीं ध्यान दिया होगा, आपने, आपको शुरुआत में बोरिंग लग गया होगा, आपने उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया होगा, या फिर आपको उसका फैसिनेशन नहीं होगा, है ना? बात कर रहे होगे दोस्तों से क्लास में, तो फिर ध्यान नहीं दिया तो वो टफ लगने लगे. तो ये नॉर्मल है. तो हम क्या सीखा? हमने सीखा ये है कि हमें जब भी क्लास होगी ना तो ध्यान से सुनना है. दैट्स इट. अगर ध्यान से सुनेंगे और इंटरेक्ट करेंगे, अपनी बात कह लेंगे टीचर से, तो धीरे धीरे सब कुछ इजी लगने लगता है. बस इतना ही करना है. Anyway, so this is wavelength. Another, let's say, is nothing but frequency, and that is represented by
नू, है ना, ऐसा वी टाइप दिख रहा है, ऐसा होता है नू। ठीक है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नथिंग बट नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, है ना। जैसे मान लो तुम रोटेट कर रहे हो, एक एक उस पे चक्कर लगा रहे हो, इफ यू आर सफिशिएंटली फास्ट, आप एक सेकंड में मान लो आपने 5 चक्कर लगा दिए, लेट्स इमेजिन, ऐसा हुआ नहीं, then frequency is going to be what, 5 hertz, 5 cycle per second, ठीक है। So this is number of cycle per second, or we can say number of cycle passing through a point in 1 second. So let's say if you are rotating, and I'm saying, let's say I have imaginary fixed this point, and I'm saying how many times, let's say, you are going to pass it. So if you are going to let's say pass it, right, ठीक है, इस पॉइंट से आप एक बार निकल गए, इसका मतलब एक साइकिल आपने पूरी कर ली। If you are going to pass it, है ना, 2 times, है ना, then we are going to say you have completed 2 cycles, like that, ठीक है। The number of cycle passing through a point in 1 second, ठीक है। Now इसकी यूनिट क्या होगी? साइकिल पर सेकंड को क्या बोलते हैं? हर्ट्ज, ठीक है, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं हर्ट्ज। Yes, that is nothing but number of cycle per second. 1 hertz is nothing but 1 cycle per second, ठीक है। So there is a relation between frequency, speed and wavelength. So what is that relation? That relation is nothing but nu equals to c by lambda. How we are getting this relation? Let's understand. तो मैं ये कह रहा हूं, लेट्स से कि मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 साइकिल पर सेकेंड है, लेट्स से 5 साइकिल पर सेकेंड है, लेट्स से। और if I am going to talk about, this is frequency, if I am going to talk about, let's say, speed, तो मैं कह रहा हूं कि लेट्स से मेरी जो स्पीड है वो 500 मीटर पर सेकेंड है। मतलब अगर मैंने कहीं से स्टार्ट किया होगा तो मैंने 500 मीटर चल लिए होंगे एक सेकंड में, लेट्स से, ठीक है। 500 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो, और एक ये भी बात मान लो कि अगर यहाँ पे जो एक साइकिल है इसकी लेंथ, जैसे लैम्डा जो है वो 100 है, लेट्स से, है ना, इस पूरे पाथ की जो लेंथ है, राइट, जो साइकिल है उसकी लेंथ है वो 100 है, देन कैन आई से कि मैंने यहाँ 5 चक्कर पूरे कर लिए, है ना। 500 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होगा? 500 डिस्टेंस मैंने चल ली, तो एक सेकंड में डिस्टेंस कितनी हो गई? 500 500 का मतलब कितनी साइकिल हो गई? 5 साइकिल, 5 साइकिल पर सेकंड। सो 500 डिवाइड बाय 100 यू आर गेटिंग 5, है ना। ऐसे समझने के लिए समझा दिया है, राइट, और यू कैन रिमेम्बर द फॉर्मूला, ठीक है। तो न्यू क्या होता है? हाउ मेनी नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड, ठीक है। स्पीड क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाउ मेनी मीटर इन 1 सेकंड, दैट्स मीटर इन 1 सेकंड। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ मीटर्स इन 1 साइकिल, है ना, नंबर ऑफ मीटर इन 1 साइकिल। तो एक तरह से ये लिखा है मीटर बाय सेकंड, ये लिखा है मीटर इन साइकिल,
तो ये मीटर मीटर कट गया, साइकिल ऊपर पहुंच गया ना, साइकिल पर सेकंड, राइट। समझ में आ रही है बात? ठीक है, सो दैट्स हाउ साइकिल पर सेकंड यू आर एबल टू गेट। सो फॉर्मूला इज न्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि अगर हमें किसी भी लाइट की वेवलेंथ बताओ तो हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि c इज कांस्टेंट। तो लेट्स से एन एग्जांपल, फाइंड frequency of red light, lambda is 7500 angstrom and blue light lambda is 4000 angstrom। चलो भाई जल्दी जल्दी बताओ आंसर, फ्रीक्वेंसी देखते हैं कितने लोगों के सही आंसर आते हैं। चलो भाई, है ना, काफी लोगों के आंसर आ गए। अब हम पावर देख लेते हैं, क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओनली प्रॉब्लम इज इन पावर, है ना, कि वही पावर कितनी आएगी। तो लेट्स से पहला है 7500 एंगस्ट्रॉम, सो न्यू इज नथिंग बट 3 into 10 to the power 8 meter per second, right? C, and lambda is 7500 angstrom, so you are going to write angstrom को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, अभी मैंने बोला था, right? मीटर मीटर कटेगा तभी, right? So you have to write 10 to the power minus 10 meter. Now this 10 to the power minus 10 is going to go up, so ये हो जाएगा 3 into 10 to the power 18 divided by 7500, है ना, साइकिल पर सेकेंड। सो दिस इज 1/s, है ना, मीटर मीटर कट गया, so this is per second. Now you are just going to solve 20, मतलब यहाँ पे 16 हो गया, then you can write 20 again here, so 300 divided by 75, so 10 to the power 14 divided by 75, so first answer is going to be 4 into 10 to the power 14 hertz, पहला। दूसरा, similarly new you are going to write, so it is going to be just opposite, so the value will come 7.5 into 10 to the power 14 hertz। ठीक है भाई, समझ में आ गया?
पावर में नहीं आए ऐसे ही आंसर, है ना? क्यों? क्योंकि हमने कन्वर्जन भूल गए, राइट? यहाँ पे ध्यान रखना है, कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक नया टर्म है फिफ्थ, दैट इज कॉल्ड वेव नंबर। वेव नंबर, and that is represented by nu bar. That is represented by nu bar. Now, what does that mean? That means number of waves in 1 unit length. अब ये 1 unit length could be 1 meter, could be 1 centimeter, could be anything, है ना? Could be 1 angstrom, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो वो मेंशन होगा. What is wave number? Nu bar is nothing but 1 by lambda. जनरली ये दोनों यूनिट यूज होती हैं, मीटर और सेंटीमीटर. सो लेट्स से जो एग्जांपल हमने लिखा था 7500 एंगस्ट्रॉम फॉर रेड लाइट, है ना? तो न्यू बार कितना हो जाएगा? सो लेट्स से न्यू बार इज गोइंग टू बी 1/7500. एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 10⁻⁻10. तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻10 ऊपर चला जाएगा, 10⁻10 + 10 7500. 2 जीरो से हटाएंगे 10⁸, फिर 100 लिख लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, है ना? Right. So this is going to be 100 by 75, let's say, into 10⁻6. or you can say ये कट जाएगा 25 से 4/3, so 1.33. I am directly writing into 10⁻6. अब ये किसमें लिया मैंने? एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट किया किसमें? मीटर में. तो यूनिट इज गोइंग टू बी 1/मीटर और मीटर इनवर्स. व्हाट इज द, लेट्स से, meter inverse? If let's say somebody is going to convert this into centimeter, 1 angstrom is nothing but 10⁻⁻10 meter. 1 angstrom is nothing but 10⁻⁸ सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर का मतलब क्या है? 1 सेंटीमीटर इज नथिंग बट 10⁻⁻2 मीटर, है ना? यहाँ पे सेंटीमीटर की जगह ये लिख देंगे तो अपने आप ये मिल जाएगा, राइट? सो इफ समबडी इज गोइंग टू डू दिस कि वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेगा तो क्या करेगा? न्यू बार इज नथिंग बट 1/7500 into 10⁻⁸. सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं. So then it will be 10⁸ divided by 7500. So what will happen if we are going to solve? Then this will come 1.33 into 10⁴ centimeter inverse, right? So it's up to you. Both answers are correct. Depends on in which unit they have given, right? तो ये हो गया, है ना? फॉर्मूला याद रहेगा, न्यू बार इज नथिंग बट 1/λ.
डन। ठीक है, तो ये तो हो गई भाई वेव से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, अब हम समझते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट इज नथिंग बट लाइट। That is nothing but EMR, or you can say light। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब क्या है कि ओवर हियर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट्स से this is magnetic field, let's say this is perpendicular to each other, and this is direction in which electromagnetic radiation is moving, so direction of wave। In which this is going to move, okay? So that's why it is called electromagnetic radiation। That means electric and magnetic field both are present in these radiation, okay? And the one example is which we are seeing, that is sunlight, जो हमें मिल रही है light, उसका एक एग्जाम्पल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक एग्जाम्पल ये भी है। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कई सारे पार्ट हैं, देयर आर न्यूमरस वेरियस पार्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन can be broken into many parts, so we can say cosmic rays, then we can say gamma rays, we can say X-rays, okay? So this is what is happening, wavelength is increasing in this direction। तो कॉस्मिक रेज से गामा रेज की वेवलेंथ ज्यादा है, गामा रेज से एक्स रेज की ज्यादा है, एक्सरे के बाद फिर क्या आएगा, अल्ट्रावायलेट, फिर क्या आएगा, विजिबल। दिस विजिबल लाइट वी हैव टू स्टडी। तो विजिबल लाइट का आपको याद रखना है कि कहां से कहां तक होती है, 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम। और ये कैसे होती है, इसमें कलर कौन कौन से दिखते हैं आपको, विबग्योर, याद रखना है ये, है ना। विबग्योर इज नथिंग बट वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। वॉयलेट से पहले अल्ट्रावायलेट, रेड के बाद इंफ्रारेड, राइट, इंफ्रारेड, फिर इसके बाद माइक्रोवेव, and then radio wave। So these are the part of electromagnetic radiation, or you can say light, ठीक है। इसमें विजिबल आपको याद रखना है, तो आपका वॉयलेट कलर का जैसे वेवलेंथ क्या होगा, लगभग है ना, वो 3800 एंगस्ट्रॉम के आसपास ही होगा। और रेड लाइट का क्या होगा, है ना, 7600 के आसपास, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब कोई मुझसे बोले, है ना, which of the following, let's say color, which of the following color is having lower frequency than orange light, है ना, lower frequency than orange light, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो उसमें ऑप्शन दे रखा है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड, तो आंसर क्या हो जाएगा,
लोअर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? हायर वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हायर वेवलेंथ में कौन है येलो के बाद, सॉरी ऑरेंज के बाद? रेड। आंसर इज रेड। समझ में आया? ठीक है। तो अगर कोई ऐसे पूछेगा कि किसी कलर की वेवलेंथ बढ़ रही है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी घट रही है ना? ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है? ये विबग्योर याद रखना है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर। ठीक है। इन दिस डायरेक्शन वी आर सेइंग वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग एंड फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीजिंग। नाउ अब बात करते हैं हम डुअल नेचर ऑफ लाइट की। तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, ये सब वेव नेचर और ये। So that is the important thing is dual nature of light. So light can show both type of nature. It can show wave nature and it can show particle nature. ठीक है? It can show wave nature and it can show particle nature. Wave nature का मतलब क्या है? ठीक है, वेव नेचर का मतलब ये है कि एनर्जी का फ्लो थ्रू द मीडियम, है ना, एनर्जी इज फ्लोइंग थ्रू द मीडियम। जैसे मैं बोलूं कि लेट्स से if I have let's say put some mechanical energy, मैंने थोड़ा सा काम किया और ये पूरी मैकेनिकल एनर्जी let's say एक पत्थर के थ्रू, है ना, पानी में डाली, है ना, विद दिस वॉल, है ना, मैंने ये पूरा एनर्जी देके, वो वॉल को एनर्जी देके पानी में डाला, तो मैंने एनर्जी ट्रांसफर की टू द वाटर। अब वो वाटर में कैसे वो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है? थ्रू द रिपल्स, है ना, रिपल्स जनरेट हुए और फिर वो एनर्जी ट्रांसफर हुई। ठीक है। मैंने जो यहाँ पे जो एनर्जी का मूवमेंट है वो हो क्या क्या रहा है? वन पॉइंट से अनदर पॉइंट में हो रहा है, थ्रू द मीडियम हो रहा है। ठीक है। एक और चीज, जैसे लेट्स से एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मैंने एक रस्सी को एक सिरे से बांध दिया और दूसरे सिरे पे पकड़ लिया हाथ में, और ऐसे करके एक पल्स दी, मतलब मैंने मैकेनिकल एनर्जी दी। ठीक है। वो पल्स जैसे ही जनरेट होगी वो आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। इसका मतलब है जो मैकेनिकल एनर्जी मैंने दी है वो थ्रू द रस्सी, है ना, रोप, वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। सो थ्रू द लेट्स से मीडियम दैट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब एक्चुअल में अगर आप देख रहे हो तो वहां पे हो गया रहा है, रस्सी का एक लेट्स से रस्सी के अंदर जो भी मैटर है वो एनर्जी को अपने से बगल वाले को ट्रांसफर कर दे रहा है ना। अगर मैंने ऐसे झटका दिया है, राइट, आई हैव जनरेटेड द पल्स, तो जो एनर्जी जिस पॉइंट पे मैंने अभी अभी एनर्जी दी थी उस पॉइंट से आगे बढ़ी, आगे कैसे बढ़ी, है ना, उस पॉइंट के जो भी पार्टिकल हैं रस्सी के, उन्होंने बगल वाले को एनर्जी दी। सही है। सो एनर्जी क्या है? कीप ऑन ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जो मीडियम है, मीडियम में जो पार्टिकल्स हैं, they are not moving by itself, they are transferring the energy to next one। से बगल बगल वाले को ऐसे ट्रांसफर करते जाते हैं, एनर्जी पास ऑन हो जाती है। जैसे वेन एवर आई एम सेइंग समथिंग, है ना, मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो हो क्या रहा है, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो एनर्जी जो भी हमारे एटमॉस्फेयर है उस पार्टिकल वहां पे जा रहा है, और वो पार्टिकल कीप ऑन दे आर ट्रांसफरिंग द एनर्जी इनटू द लेट्स से एटमॉस्फेयर। तो हमें सुनाई दे रही। ठीक है। समझ में आया ये साउंड एंड वेव का मतलब क्या है? द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन, है ना, थ्रू द मीडियम।
ये तो हो गया आपका वेव नेचर। पार्टिकल नेचर क्या होता है? पार्टिकल नेचर का मतलब है कि पार्टिकल इटसेल्फ इज कैरिंग एनर्जी एंड देन इट इज मूविंग, और जहां जाके कोलाइड करेगा वहां एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो जैसे अगर मैंने मान लो मुझे 50 जूल एनर्जी चाहिए, है ना, मुझे 50 जूल एनर्जी चाहिए लेट्स से, ठीक है, तो पूरी की पूरी वो 50 जूल एनर्जी मैंने एक पार्टिकल को दी, यहाँ से भेजा, है ना, वो जहां पे भी टकराएगा वो वहां पे 50 जूल एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। सो पार्टिकल इटसेल्फ इज कैरिंग द एनर्जी, particle itself is carrying the energy, that is going to be particle. So तो जब भी ऐसा कभी होगा तो हम पार्टिकल नेचर कहेंगे, जब भी ऐसा होगा, है ना, तो हम वेव नेचर कहेंगे। एंड लाइट साइमल्टेनियसली कैन शो बोथ टाइप ऑफ बिहेवियर, है ना, कैसे? तो certain phenomena can only be explained by wave nature, certain phenomena can only be explained by particle nature. So we can write light simultaneously show both nature, where as certain phenomenon can only be explained by wave nature, and or can only be explained by wave nature, and others can only be explained by particle nature. हाँ, तो वही कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जो पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करेगा, कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जो वेव नेचर एक्सप्लेन करेगा, राइट। तो जैसे कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पे। सो इंटरफेरेंस, diffraction, these are the phenomena explained by wave nature। अब कैसे समझाते हैं और होते क्या है, थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, black body radiation, photoelectric effect is explained by particle nature। ठीक है, किसी को पता है इंटरफेरेंस क्या होता है? नहीं, ठीक है, तो जैसे अगर मान लो, इमेजिन करो कि एक ये, है ना, पानी कहीं पे स्टैंड स्टिल है, तालाब टाइप का है, राइट, तो दोस्त एक साथ जो है ना पत्थर फेंक रहे हैं, एक ने ये पत्थर फेंका तो ये क्या हुआ, रिपल्स क्रिएट होंगी। साइमल्टेनियसली दूसरे ने भी पत्थर फेंका तो यहाँ पे भी रिपल्स क्रिएट होंगी, राइट।
at certain point of time these are going to collide with each other. फिर क्या होता है, जहां पे भी कोलिजन होता है वहां पे ये एक दूसरे को कैंसिल करने लग जाते हैं, राइट, है ना, सबने देखा ना। राइट, तो ये क्या है, वेव नेचर है, एनर्जी का फ्लो हुआ है ना, दोनों टाइम से अपोजिट है एक दूसरे को, तो कैंसिल करना है। कैन यू एक्सप्लेन थ्रू द पार्टिकल नेचर, ये जो एनर्जी है वो पार्टिकल के फॉर्म में आ रही है ना, वो आपस में दो टकराए और खत्म हो गए, दो पार्टिकल ऐसे नष्ट हो गए, राइट, देन इट इज गोइंग टू बी रॉन्ग, बिकॉज अकॉर्डिंग टू Dalton's theory, atoms can neither be created, like cannot be destroyed, right, cannot, right, तो ऐसा तो है नहीं कि मैटर खत्म हो जाएगा वहां पे, पार्टिकल नेचर, ठीक है ना। सिमिलरली इफ लेट्स से किसी ने पत्थर मारा, उसकी पल्स क्रिएट हुई, ऐसे ऐसे रिपल्स ये क्रिएट हुई, और फिर दोबारा यहीं पे पत्थर फेंक दिया, फिर एक और होगी, तो क्या होगा, पीछे वाली जो होगी रिपल्स, वो आगे वाली रिपल्स को, है ना, जोड़ देगी, वो बड़ी रिपल्स बन जाएगी। ऐसा केस में होता है वेव्स, जैसे सी लेट्स से के किनारे खड़े हो जाओ, तो देखते हो वहां पे पहले छोटी सी वेव बनना चालू हुई, बहुत दूर आते आते बहुत बड़ी हो गई, है ना, होता है ऐसा, हाँ ना कहो, यस और नो, सो दैट इज नथिंग बट इंटरफेरेंस, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, इंटरफेरेंस इज नथिंग बट टू टाइप्स, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव मतलब जुड़ जाएगा फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, एंड डिस्ट्रक्टिव मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर वेव नेचर है ना, तो दिस टाइप ऑफ फिनोमेना कैन ओनली बी एक्सप्लेन थ्रू वेव नेचर, कि अगर मान लो हम दो लाइट्स को जोड़ेंगे, है ना, दो लाइट्स को अगर जोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, और ब्राइटर लाइट हो जाएगी, ठीक है। और अगर मान लो हम दोनों लाइट को अपोजिट, लेट्स से दो एनर्जी है उनको अपोजिट रखेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, वो एनर्जी कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये समझने के लिए और बेटर तरीके से, ये तो मैंने बेसिक बता दिया, इन चारों टर्म्स को आपको गूगल करना है, छोटे छोटे वीडियोस देखने हैं, तो वो एक्सप्लेनेशन जो होगा वो वीडियो के थ्रू होगा, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे लाइट में भी ऐसा होता है ना, कैंसिल आउट, कहीं पे लाइट ज्यादा हो जाएगी, ब्राइट हो जाएगी, कहीं पे लाइट आपकी कम हो जाएगी, ठीक है, इंटरफेरेंस होगा तो वो दिखाएंगे। डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन इज नथिंग बट काइंड ऑफ ए कटिंग ऑफ लाइट, लाइट को कट करना, और फिर उसके बाद वो लाइट एक इंडिविजुअल सोर्सेज में क्रिएट हो जाती है। तो होता ये है कि जैसे जो लाइट है, व्हाट हैपेंस इज कि मैं इसको कैसे बताऊं, वेट, तो हुआ ये एक्चुअली में कि एक किसी भी शार्प एज से अगर लाइट पास होती है ना, किसी भी शार्प एज से लाइट पास होती है, तो वो उस एज से लाइट थोड़ा सा कट जाती है। कटने का मतलब है थोड़ा सा वो, आई विल टेल यू, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक एक्सपेरिमेंट हुआ, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसमें क्या होगा, दो स्लिट ऐसे बहुत शार्प स्लिट ऐसे यहाँ पे बीच में रखी गई, और इसके बाद एक यहाँ पे लाइट सोर्स लगाएगा, लाइट सोर्स होगा तो वो ऐसे लाइट छोड़ रहा है, राइट। तो जब ये है ना ऐसे होल्स टाइप का है ये, तो जब ये लाइट इससे पास हुई तो फिर क्या हुआ, ये लाइट जब भी इस लाइट से पास हुई, इस एरिया से पास हुई, तो फिर से ये एक लाइट सोर्स बन गई, है ना, यहाँ से भी पास हुई तो यहाँ से लाइट सोर्स बन गई ऐसे। So the one light has been, let's say, broken into two lights, दो लाइट सोर्स हो गए। ऐसा हम लोग खुद भी देखते हैं, राइट, कई बार एक ही लाइट सोर्स से कई मल्टीपल लाइट क्रिएट करते हैं ना, तो इस तरह से लाइट क्रिएट कर रहे हैं। नाउ द मल्टीपल लाइट सोर्स
जो ये मल्टीपल लाइट सोर्स हो रहे हैं एक लाइट से दूसरे, है ना, बिकॉज ऑफ दिस शार्प एजेस हो रहे हैं, कट जा रही है लाइट वहां से। तो इसको बोलते हैं डिफ्रेक्शन, ठीक है। और डिफ्रेक्शन कैसे, तो यहाँ पे एक तरह से समझ में आया वर्ड जो हम समझ सकते हैं वो है स्कैटरिंग। बेटर वर्ड वी कैन से इज नथिंग बट काइंड ऑफ ए स्कैटरिंग। लाइट जो है ना वो आपका स्कैटर हो रहा है ना। तो ये जो डिफ्रेक्शन है, डिफ्रेक्शन को एक और वर्ड से समझ सकते हैं कि यस, जो जैसे मान लो आप देखते हो डेंस फॉरेस्ट, उनमें जो जो ये लीव्स होती हैं ना, उनके जो शार्प एजेस होते हैं किनारे वाले, है ना, उनसे लाइट जो है उन पे लाइट गिरती है, और वो लाइट गिरने के बाद आपकी ब्रेक होके बेंड होके नीचे तक पहुंचती है। अगर केवल और केवल पार्टिकल नेचर होता, वेव नेचर नहीं होता, तो वो क्या होती, लाइट गिरती और रिफ्लेक्ट हो जाती, तो लाइट करके पाथ चेंज कर लेती है ना। तो जहां डेंस फॉरेस्ट होते हैं वहां पे भी नीचे जाके वेजिटेशन कैसे ग्रो होता है, क्योंकि लाइट पूरा स्कैटर होके ब्रेक होके नीचे तक पहुंचती है, ठीक है। तो लाइट नीचे तक पहुंचती है तभी वेजिटेशन ग्रो हो पाता है, जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है। तो एक तो वहां से आप एग्जांपल समझ सकते हो। तो डिफ्रैक्शन इज लाइक दिस, ठीक है। फिर आती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब है एनर्जी, है ना। रेडिएशन का मतलब है एनर्जी, सबको पता है रेडिएशन, है ना। एटॉमिक बॉम्ब से याद आता होगा रेडिएशन हो रहा है, ठीक है। तो रेडिएशन का मतलब है एनर्जी इमिट हो रही है कहीं से। होता यह है कि जितनी भी बॉडी है, ऑल द बॉडीज, है ना, जितने भी मैटर हैं, जैसे वॉल हो गया आपका, चेयर हो गया, है ना, कुछ भी, ऑल दीज मैटर्स आर गोइंग टू एब्जॉर्ब सम एनर्जी। जब इन पे लाइट गिरती है तो ये कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अपनी खुद की बॉडी भी ऐसे ही करती है ना, लाइट को एब्जॉर्ब करती है और फिर कुछ एनर्जी इमिट भी करती है। ऐसा नहीं कि इमिट नहीं करती, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, दैट मैटर इज गोइंग टू इमिट द एनर्जी, ठीक है। अब वो कंडक्टर के ऊपर है कि कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है, कैसे एनर्जी इमिट हो रही है, बट दे आर गोइंग टू इमिट द एनर्जी, ठीक है। नाउ दिस इमिशन ऑफ एनर्जी कैन वेरी विद द टेम्परेचर। जैसे आपने कभी कोई किसी लोहे को गर्म किया हो, तो पहले वो रेड होना चालू होता है, और उसको अगर आप गर्म करते जाओगे तो वो ब्राइट हो जाता है ना। जैसे लोहे को मेल्ट होते हुए देखो, पहले धीरे धीरे रेड रहेगा, रेड होते होते फिर और ब्राइट हो जाएगा। तो अलग अलग टेम्परेचर पे उसका कलर अलग अलग है। इसका मतलब क्या है, उसकी जो एनर्जी इमिट हो रही है दैट इज लेट्स से डिफरेंट, ठीक है। वेवलेंथ डिफरेंट हो गई ना, कलर डिफरेंट हो गया, इसका मतलब क्या है, वेवलेंथ डिफरेंट हो गई, वेवलेंथ डिफरेंट हो गई, इसका मतलब क्या है, एनर्जी डिफरेंट हो गई। तो रेडिएशन का मतलब ये है, बॉडी रेडिएशन का मतलब ये है कि कोई भी जैसे मान लो पार्टिकल है, कोई भी मैटर है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और एनर्जी इमिट करेगा, एनर्जी छोड़ेगा भी, ठीक है। Now that energy, let's say, which we are going to radiate is nothing but discontinuous flow of energy. अगर वेव नेचर होगा तो वो कंटिन्यूस फ्लो होगा। हमारी बॉडी से जो एनर्जी निकल रही है या किसी भी मैटर से जो एनर्जी निकल रही है वो है डिसकंटिन्यूस फॉर्म में, ठीक है। दैट इज नॉट कंटिन्यूस। विद द टेम्परेचर इफ यू आर गोइंग टू चेंज देन डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू इमिट। ये तो क्या बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब क्या है, people are trying to find a perfectly black body which is going to absorb 100% energy, should not reflect anything, उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी। जैसे आप ब्लैक कलर देखते हो, ब्लैक कलर कोई ज्यादा ब्लैक है कोई कम ब्लैक है, कैसे डिफाइन होता है, हाउ मच लाइट इट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट एंड हाउ मच लाइट इट इज गोइंग टू एब्जॉर्ब, हाउ मच लाइट इट इज गोइंग टू एब्जॉर्ब। कोई ज्यादा डार्कर ब्लैक लगता है, इसका मतलब ये है कि वो क्या कर रहा है, ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और कम लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। जो कलर होते हैं ना ब्लैक, कभी कंपेयर करना तो उसमें ये दिखता है कि कौन लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, उस पर गिर के लाइट थोड़ी थोड़ी ऐसे चमक रही है, हल्की हल्की। तो जो जितनी ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा वो उतना परफेक्टली ब्लैक हो जाता है, मतलब उतनी तरफ। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में वो लोग क्या करते हैं, ये सब फिजिक्स के टर्म में फिजिक्स में पढ़ाएंगे, केवल हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। ऑल दीज आर गोइंग टू लेट्स से कवर्ड इन फिजिक्स। मैं बस एक आइडिया दे रहा हूँ, बेसिक आइडिया।
एंड आई हैव टोल्ड यू कि इनको सर्च भी करना है, सर्च करो, देखो तो वो आपको थोड़ा एप्लीकेशन भी दिखेंगे, ठीक है। तो होता यह है कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी डिजाइन कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने साइंटिस्ट ने क्या, एक ऐसे एक कैविटी टाइप की बनाई, और है ना, कैविटी जो है सर्कुलर कैविटी है, और उसमें एक लाइट जैसे मान लो कोई ऐसे पास कराई, तो जैसे ये लाइट यहाँ टकराएगी, फिर ये रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ जाएगी, लेट्स से इट विल कीप ऑन, लेट्स से रिफ्लेक्टिंग एंड एब्जॉर्बिंग, जितनी बार टकराएगी उतनी बार एब्जॉर्ब होगी, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होता जाएगा, तो अल्टीमेटली यहाँ से वापस जो लाइट जाएगी, है ना, जब भी कभी निकल के, वो ऑलमोस्ट, है ना, 99% तक एब्जॉर्ब हो चुकी होगी। तो इस तरह से उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो यहाँ पे दो टर्म है, एक है बॉडी रेडिएशन, एक ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी का मतलब क्या है, जो ऑलमोस्ट ऑल द एनर्जी इज गोइंग टू एब्जॉर्ब, दैट इज गोइंग टू बी ब्लैक बॉडी, है ना, ऑलमोस्ट, है ना, जैसे ब्लैक होल, एनर्जी जो लाइट गई वो वापस ही नहीं निकलती, राइट, एनर्जी, सो दैट इज परफेक्टली ब्लैक, ठीक है। तो अभी यहाँ से चलते हैं फिर आगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अभी बस ब्रीफ में बता रहा हूँ क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। होता ही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिन पे लाइट गिराओगे आप, यू आर गोइंग टू पुट सम लाइट ऑन इट। तो लाइट का मतलब है एनर्जी, है ना, सनलाइट का मतलब क्या है, एनर्जी है ना, खड़े हो जाओ धूप में थोड़ी देर तक, तो आपके अंदर, है ना, आपकी बॉडी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी, राइट, सो दैट इज द एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम सनलाइट। जब ये एनर्जी गिरती है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जैसे ही इनको एक सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है ना, इफ दिस वेवलेंथ इज कैरिंग ए सफिशिएंट एनर्जी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाते हैं, है ना, इमिट का मतलब बाहर निकल जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को कौन अपनी तरफ रोके हुए है, न्यूक्लियस अट्रैक्ट करे हुए, है ना, पकड़ के रखा हुआ है। लेकिन अगर ये एनर्जी इतनी ज्यादा है कि इस फोर्स को, इस एनर्जी को ये ओवरकम कर जाए, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनमें ये फोर्स बहुत कम होता है, एस ब्लॉक मेटल जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, राइट, तो पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, इनमें ये अट्रैक्टिव फोर्स कम होता है, तो थोड़ी भी एनर्जी की लाइट आएगी तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, समझ में आया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो मतलब लाइट which is going to fall on the metal surface, electrons are going to come out, क्या होगा, करंट फ्लो हो जाएगा पूरा। तो जितने भी आपके लाइट सेंसिटिव एप्लीकेशंस हैं, है ना, कि जहाँ पे जैसे मान लो आप कहीं खड़े हो तो डोर खुल गया वगैरह, उन सब में फोटोवोल्टिक सेल यूज होते हैं, उन सब में फोटोवोल्टिक सेल यूज होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स यूज होते हैं, उनको बोलते हैं फोटोवोल्टिक, जिनमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता रहता है, ठीक है। प्रिंसिपल सिंपल सा है कि इलेक्ट्रॉन गिरेंगे, सॉरी एनर्जी गिरेगी, इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो क्या होता है, तो इसका जो डिजाइन है वो एक तरह से वो कैथोड रे ट्यूब जैसा ही है। अच्छा, कैसे, जैसे ऐसा है, ये एक ऐसे, है ना, मान लो प्लेट है, मेटल प्लेट, इस पे ये लाइट गिरी, लाइट गिरी तो क्या हुआ, लाइट गिरी तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो ये यहाँ पे जाके, है ना, ये पॉजिटिव है इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन जाके इससे मिल गए, जैसे ही मिले तो क्या हुआ, सर्किट कंप्लीट हो गया, डिफ्लेक्शन मिल गया। जब तक लाइट नहीं गिर रही थी तब तक क्या था, है ना, जब तक लाइट नहीं गिर रही थी तब तक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल नहीं रहे थे, बाहर नहीं निकल रहे थे, तो डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। अब ये डिफ्लेक्शन के हिसाब से यू कैन एडजस्ट द ऑपरेशन, है ना, कि जब लाइट गिरी तो क्या होगा और जब लाइट नहीं गिर रही तो क्या होगा, है ना। तो लाइट जब तक गिर रही है तब तक डोर क्लोज होगा, जैसे ही कोई सामने आ गया इसका मतलब है उस सेंसर पे लाइट गिरना बंद हो गई, राइट, दे आर एबल टू इमेज इट, लाइट गिरना बंद हो गई वो खुल जाएगा, है ना। तो दैट्स हाउ द
doors or all these applications are going to work. इतनी बात समझ में आ रही? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पार्टिकल नेचर से कैसे बताते हैं, राइट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पार्टिकल नेचर से इसलिए बताते हैं क्योंकि ये अज्यूम किया गया सिंस वेव फॉर्म इज कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी। तो जैसे अगर मान लो आपको किसी भी मेटल, मतलब अकॉर्डिंग टू वेव नेचर क्या था कि मान लो किसी मेटल को ज्यादा एनर्जी चाहिए, है ना, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, है ना, जहाँ पे टाइटली इलेक्ट्रॉन होल्ड हुए हो। तो ये सोचा गया कि अगर वेव नेचर होगा तो कभी ना कभी तो एनर्जी वो लगातार गिर रही है। जैसे मान लो एक किसी भी मेटल को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 100 जूल की एनर्जी चाहिए, दैट्स इट। लगातार आप पे एनर्जी गिर रही है, राइट? लगातार एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, मान लो 5 जूल पर सेकंड के हिसाब से एनर्जी जो है गिर रही है। देन वी विल अज्यूम कि एक टाइम के बाद 100 तक रीच हो जाएगा और उसके बाद इमिशन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का इमिशन। सो अकॉर्डिंग टू, अगर वेव नेचर होता तो हर मेटल से इलेक्ट्रॉन कभी ना कभी तो निकल ही जाता। मान लो किसी को 1000 जूल, किसी को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 1000 जूल एनर्जी चाहिए, तो हम कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, एनर्जी जब सफिशिएंटली 200 सेकंड के बाद इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, राइट? तो पहली बात तो ये, वेव नेचर होता तो इलेक्ट्रॉन सबसे निकलता, ठीक है, आफ्टर सर्टेन टाइम निकलता। लेकिन यहाँ देखा क्या गया, जैसे ही एनर्जी गिरी तुरंत इलेक्ट्रॉन निकला, सफिशिएंट एनर्जी गिरी तुरंत इलेक्ट्रॉन निकला, मतलब कोई टाइम लैग नहीं था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जितनी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी चाहिए वो उस फोटोन के पास है, वो फोटोन गिरा, इलेक्ट्रॉन बाहर आया तुरंत। सॉरी, वो लाइट के पास है, फोटोन का मतलब आगे हम समझाएंगे। लाइट के पास है, लाइट एक पार्टिकल के फॉर्म में है, लाइट का जो पार्टिकल है उसको फोटोन बोलते हैं, ठीक है? तो लाइट पार्टिकल के फॉर्म में, वो पूरी एनर्जी कैरी कर रहा है, इलेक्ट्रॉन से जाके कोलाइड हुआ और उसने उतनी एनर्जी हासिल कर ली। समझ में आया? तो इसमें कोई टाइम लैग नहीं दिखता है, एंड दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन थ्रू वेव नेचर, इट कैन ओनली बी एक्सप्लेन थ्रू पार्टिकल नेचर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है? तो विल मूव ऑन टू दिस पार्ट, है ना? इतना समझ में आ गया वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, मोटा मोटा क्या है? एनी डाउट? क्लियर? नहीं, यस। Sir, in diffraction, does the wavelength of light changes? नहीं, आई डोंट थिंक कि, मतलब ऑब्वियसली ये फिजिक्स वालों से ही पूछना ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? लेकिन आई डोंट थिंक कि वेवलेंथ विल चेंज। Okay, एक्चुअली क्या sir. होता है ना, लाइट में, लाइट इज लाइक नॉट द सिंगल, लेट्स से कलर और सिंगल वेवलेंथ्स आर देयर, देयर इज अ रेंज, है ना? व्हाइट लाइट जब आप देखते हो, कहते हो, तो उसमें उसमें है क्या, सब तरह की लाइट है ना। सो you are having a lot of lights over there, तो उन सबकी वेवलेंथ अलग अलग है, एक रेंज है उनमें। बट ऑब्वियसली अगर मान लो मोनोक्रोमेटिक लाइट भेजेंगे एक ही सिंगल वेवलेंथ की, आई डोंट थिंक कि उसका वेवलेंथ चेंज होगा, आई डोंट थिंक, ठीक है? तो ओके, एनी अदर डाउट? चल, नेक्स्ट अभी हम समझते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या क्या बातें याद रखनी है, वो इतना याद रखना है कि डुअल नेचर एग्जिस्ट करता है, continuous flow of energy is going to wave nature, and discontinuous flow of energy is particle nature. So this is the first is explained by Planck. ये पहले किसने ऑब्जर्व किया? डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस वाला प्लैंक ने ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने एक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी दी। ठीक है, व्हाट ही सेड कि जो लाइट है, तो एब्जॉर्ब लाइट है और इमिटेड लाइट है, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डिसकंटिन्यूअस फ्लो,
है ना, or you can say in the form of small packets of energy. ठीक है, so according to Planck, absorbed or emitted radiation can be in the form of can be discontinuous flow of energy and this is as and पहले देख लेते हैं, ठीक है, these discontinuous flow good job. Let's rephrase the sentence. So emitted and absorbed energy can be in the form of small packets discrete का मतलब है which are having a particular energy, है ना, fixed energy. Discrete मतलब जिसकी कुछ वैल्यू हो, अलग वैल्यू हो. Discrete small packets of energy these packets of energies are called क्वांटा और क्वांटा. तो इन्होंने क्या बोला इसको, सबसे पहले क्वांटा या क्वांटम बोला, राइट. इन केस ऑफ लाइट, ये तो एक जनरल एनर्जी की बात कर रहे हैं, एमिटेड एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, कोई भी फॉर्म की एनर्जी होगी, उसका जो स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन होगा, स्मॉलेस्ट पैकेट होगा, है ना, दैट इज गोइंग टू बी क्वांटा. ठीक है. इन केस ऑफ लाइट, है ना, क्वांटा, फोटोन. इन केस ऑफ लाइट्स, these smallest packets are called photon. ठीक है. What is the energy of photon? So energy of photon तो लाइट की केस में जो ये स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन थे, इनको क्या बोला गया, फोटोन, नॉट क्वांटा. क्वांटा इज जनरल टर्म, ना, उसका स्पेसिफिक पार्ट हो गया फोटोन. सो एनर्जी ऑफ फोटोन EP is proportional to frequency, that is nu. So hence energy of photon is nothing but h nu, where h is Planck's constant.
और h की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h? h इज नथिंग बट 6.626 into 10⁻34 जूल सेकेंड। 6.626 को अप्रोक्सीमेटली 6.63 भी लिख लेते हैं, ठीक है, राउंड ऑफ करके। तो ये h की वैल्यू है। कितना लिख लूं? तो जो एनर्जी है वो दैट इज द लेट्स से इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स और पार्टिकल, एंड दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड क्वांटा और क्वांटम। फॉर लाइट दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड फोटोन। और एक फोटोन की एनर्जी क्या होगी, कि फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगी। लाइट में दोनों बिहेवियर एक साथ है, वेव और पार्टिकल। सो आई एम सेइंग कि जो पार्टिकल का एनर्जी है दैट इज नथिंग बट, है ना, प्रोपोर्शनल टू न्यू। हाउ मच इज दैट एनर्जी? वो जो पार्टिकल उसकी एनर्जी किसके किसके बराबर होती है? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन दिस द सेम एनर्जी h न्यू इज नथिंग बट mc², है ना। आइंस्टाइन ने क्या बोला? E इक्वल्स टू mc²। कोई भी पार्टिकल है अगर उसको पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए उसके मास को, तो हाउ मच एनर्जी इज गोइंग टू बी देयर? mc²। याद है ना ये भाई, हाँ या ना? तो प्लैंक ने क्या किया, ये वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को ऐसे जोड़ दिया दोनों। अच्छा बताओ, सनलाइट में मास होता है? ये जो पार्टिकल्स आ रहे हैं इनमें मास होगा? दे आर हैविंग सम मास? नो, सो दे आर नॉट हैविंग एनी मास। सो वी आर सेइंग कि जितना भी मास था, लेट्स से हाइपोथेटिकली थिंक कि कुछ भी मास था वो सब एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, सारा का, एंड दैट इज द एनर्जी व्हिच इज गोइंग टू फॉल। इसलिए फोटोन का मास नहीं होता है बट रेस्ट मास होता है। अगर मान लो ये जब जब चल नहीं रहा हो खुद होगा, है ना, हाइपोथेटिकली, तो उसका क्या मास आएगा? वो रेस्ट मास बोला जाता है। वो उससे ही निकल जाता है, इक्वल्स टू mc²। तो हमें पता होगा एनर्जी ऑफ लाइट कितनी है ना, h न्यू लेट्स से ये पता है, देन वी कैन से mc²। तो m की वैल्यू आ जाएगी, है ना, रेस्ट मास आ जाएगा। सही है, चलो फिजिक्स में बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा, खैर। अब चलते हैं आगे, एनर्जी ऑफ फोटोन आ गई। अब बात है, ये तो है एक एनर्जी, एक फोटोन की। कोई भी लाइट सोर्स है उससे तो मल्टीपल फोटॉन्स निकल रहे होंगे। सो इफ n photons are emitted out from a light source, and emitted out per second from a light source, then E total क्या हो जाएगा? n into energy of photon, करेक्ट ना? तो ये लिख लो। ठीक है, तो ये जल्दी से लिखो, फिर उसके बाद ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हो गई, इस पे एग्जांपल्स नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक है।
and we are going to discuss DPP in the meanwhile. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है आज की क्लास में? क्या क्या पढ़ा आज हमने, राइट? So we have seen that what is wave nature, let's say wave के important terms, amplitude, wavelength, frequency, all those things. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है E equals to h nu, इसको और भी क्या लिख सकते हैं? Nu is nothing but c by lambda, so we can write hc by lambda. ठीक है, और we can write hc nu bar, 1 by lambda is nothing but nu bar. तो ये भी फॉर्मूला बन जाए. ठीक है, ये दो फॉर्मूले और लिखेंगे. So we have seen the relation between frequency, wavelength, है ना, यहाँ पे over here, wave number. Then we have started what is, let's say, dual nature of light, electromagnetic radiation, part of, let's say, electromagnetic radiation. Then we have seen dual nature of light, phenomena which are going to explain these two, let's say, nature, and then Planck's quantum theory. तो जो यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है वो सबसे important है. E is equals to h nu. Energy of photon is nothing but h nu. अब चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में. कहीं डाउट? कोई भी? एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 1? तो बस ये देख लो, एटॉमिक नंबर पता है तो मास नंबर कितना हो जाएगा? व्हाट इज एटॉमिक नंबर प्लस एटॉमिक नंबर इज प्रोटॉन, दिस इज न्यूट्रॉन, सो दिस इज 23. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11. नंबर ऑफ प्रोटॉन, सो व्हाटएवर इज एटॉमिक नंबर दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन. यहाँ एल्यूमिनियम आयन लिखा है, सो एल्यूमिनियम आयन इज Al3 प्लस. एनीवे 27 is mass number, 13 is atomic number, 13 is number of proton, number of neutron is 14. Chloride ion, then it is Cl minus. अच्छा, ये कैसे भी पता चला Al3 plus because number of electron were 10. इसका मतलब क्या है कि 13 इलेक्ट्रॉन थे एल्यूमिनियम एटम में, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, so that's why 3 plus. ठीक है. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17. इस पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, दैट मींस Cl माइनस ही है. मास नंबर कितना हो जाएगा? 17 एटॉमिक नंबर है, 18 न्यूट्रॉन्स हैं, तो 17 प्लस 18 35. मास नंबर क्या होता है? n प्लस p. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 18. ठीक है. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए? 17. ठीक. फॉस्फोरस एटम मतलब फॉस्फोरस p. एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15 फॉस्फोरस का. मास नंबर 31 है, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 16. ठीक है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? एटम है तो नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होंगे. ठीक है. क्यूप्रस आयन Cu. अब कौन सा आयन है पता नहीं. कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29. यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 28. इसका मतलब क्यूप्रस मतलब Cu प्लस आयन. ठीक है. न्यूट्रॉन 35 दे रखे हैं, तो 35 प्लस 29 64. बस. नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए? 29. तो ये तो हो गया. कोई डाउट? फिर यहाँ पे ये देखा है, इफ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज दिस, रेडियस दे रखी है, then find the volume occupied by nucleus, then 4/3 pi r³ लगा दो, and then you will be able to find the volume of nucleus. Question number 3, the approximate radius of hydrogen atom is this and the proton is this. proton का मतलब क्या हुआ? H+. है ना, इसका मतलब न्यूक्लियस हो गया. ये न्यूक्लियस की रेडियस दे रखी है, ये एटम की रेडियस. Assuming both the hydrogen atom and proton to be spherical, इसका मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा? 4/3 pi r³. Calculate the fraction of space in atom of hydrogen that is occupied by nucleus. तो बस यहाँ पे आपको रेडियस ऑफ न्यूक्लियस दे रखा है, रेडियस ऑफ एटम दे रखा है, जस्ट सॉल्व 4/3 pi r³, तो उससे फ्रैक्शन निकल जाएगा. Find the radius of nucleus of atom having atomic mass number equals to 125. तो 125 का क्यूब रूट हो जाएगा 5. So this is approximately 1.33 into 10⁻⁵15 into 5. है ना फॉर्मूला. रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला हम बता चुके हैं, which is nothing but 1.33 into 10⁻⁵ into h⁻⁴. कोई दिक्कत यहाँ तक पहले 4 क्वेश्चन में? पहले 4 क्वेश्चन में एनी प्रॉब्लम? ठीक है. फिर आगे, the element having no neutron in the nucleus of atom is, तो जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता वो क्या होता है? हाइड्रोजन. रेशियो ऑफ E/M, E/M रेशियो
ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अल्फा पार्टिकल के लिए चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइड बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। सो दिस मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम तो होते नहीं है, सो दैट्स व्हाई नन ऑफ दीस, है ना। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफ यू आर गोइंग टू पुट इट ओवर हियर, एक तो ये हो जाएगा चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन E by me, और अल्फा पार्टिकल के लिए कितना हो जाएगा, ये 2 से कट कर दो तो E by 2 into 1837 me. There is no option which is saying कि it is 1:1 by, है ना, 3674, या फिर कहीं पे लिखा हो 3674:1, तो ये लिखा नहीं है ना, तो हम क्या कहेंगे, none of these. Which of the following is isoelectronic with neon? Neon is 10 electron, so just check. Oxygen पे 2 इलेक्ट्रॉन, yes. Fluorine पे 1 इलेक्ट्रॉन, yes. So there are 2 options. Approximate size of nucleus of this 64 का हम क्या ले लेंगे, क्यूब रूट, तो 4 आ जाएगा. 4 into 1.33 is near to 5. Which one of the following groups represent collection of isoelectronic Cs? So right, ये सोडियम में 10 हो गया, कैल्शियम में 18, हटा दो इसे, 10 10 10, ये हो जाएगा बी, बाकी चेक कर लो यहाँ पे. Which of the following are isodiphers? So you just have to check. A minus 2Z, A minus 2Z जिसमें सही आ जाए, सेम आ जाए, वो आपका isodiphers. So that's it. अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो. Multiple correct option is possible. I think you have to check here also. Then this is कितने हो गए इसके? Beryllium 4, तो ये तो नहीं होगा 10. ये कैल्शियम 18, सीजियम तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, बी होगा. ठीक है, तो ये तो गई हमारी डीपीपी. अब आज के क्लास में और ये डीपीपी में कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, एल्स यू कैन लीव. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे क्या, याद रखना, है ना, प्लैंक्स कांस्टेंट पे कुछ क्वेश्चंस कराने, वो प्लैंक थ्योरी पे, ये इस पे कुछ क्वेश्चंस कराने, वो कराएंगे. ठीक है, देन कोई डाउट, चलें, बाय.